Good afternoon, my dear students, second year JNM students. Today we will see otitis externa. In previous class we have seen otitis media and today we will see the otitis externa. This topic is taken from Emerson's second ENT. First we will see the definition. It is an inflammatory, typically infectious disorder of external ear canal, painful condition of ear. That means otitis externa क्या है? It is an inflammatory disorder of external ear canal. Okay, and this is painful condition of ear canal. Okay, external ear canal. So this is called the otitis externa. Other definition: an acute or chronic infection of the whole or a part of the skin of the external ear canal. That means acute or chronic infection of the whole or a part of the skin of the external ear canal. इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से otitis externa. या फिर an infection of outer ear canal, it is also called swimmer's ear. That means जो आउटर ईयर कैनाल में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ साथ उसको हम लोग स्विमर्स ईयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो स्विमिंग करते हैं उनको होने की ज़्यादा चांसेस रहती है. ओके, ओटाइटिस एक्सटर्ना इज डिफाइंड एज क्रोनिक व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन एक्सीड्स 4 weeks और व्हेन मोर देन 4 episodes अकर इन 1 year. दैट मीन्स अगर 4 वीक से ज़्यादा हो जाता है या मान लीजिए 1 ईयर में 4 एपिसोड्स रिकरेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन आगे चलकर आपका क्रोनिक में चला जा सकता है. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द ओटाइटिस एक्सटर्ना. नाउ वी विल सी द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. फर्स्ट, swimmer's ear is an infection that's usually caused by bacteria commonly found in water and soil. That means जो swimmers होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, उनको होने की चांसेस इसलिए होती है इन्फेक्शन क्योंकि जो वाटर और सॉइल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका कान में जाने से आपको क्या हो सकता है? ओटाइटिस एक्सटर्ना. ओके, तो स्विमर्स ईयर को इन्फेक्शन कहाँ से मिलता है? वाटर एंड सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया से. ओके, देन ट्रॉमेटाइज्ड एक्सटर्नल कैनाल, मतलब ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ओके, एक्सटर्नल कैनाल आपका इफेक्ट हो सकता है. देन ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक स्यूडोमोनास स्पीशीज, स्टेफिलोकोकस स्पीशीज एंड ग्राम नेगेटिव रॉट्स. ड्यू टू एनी फंगल इन्फेक्शंस लाइक एस्परजिलस species and Candida species. Due to eczematous otitis externa, that means due to any inflammation of the skin, it is a chance to get the otitis externa. Like eczema, eczema means any patches on the skin and they will become inflamed, then itching will be there, redness will be there. And due to seborrhea, seborrhea means excessive discharge of sebum. कहाँ से? Sebaceous gland से. ठीक है, और due to any perforation of the tympanic membrane or due to contact with dermatitis, like if you are using earrings or you are using hearing aids, so किसी को उनके वजह से भी स्किन प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये जब स्किन प्रॉब्लम होगा तो it will leads to otitis externa. And what are the risk factors of otitis externa? Due to chemotherapy and due to diabetic mellitus and weakened immune system. That means अगर आपका immune system बहुत weak है तो उनको भी होने के chances रहते हैं. So these are the risk factors of otitis externa. Okay. Before starting the symptoms, here we can see the diagram of otitis externa. Okay, see here, this whole part is called the outer ear. Okay, and this is wax shed skin, मतलब skin निकल रही है, and pus. तो this is wax जो कि क्यों आ रहा है, कान से बाहर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? Because of narrowing of the canal from
इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन क्या हो रहा है, नैरोइंग हो जा रहा है आपका एक्सटर्नल कैनल, ओके, एंड दिस इज द ईयर ड्रम। तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फेक्शन आपका जो एक्सटर्नल कैनाल है वो क्या होगा, नैरोइंग होगा, और जिसकी वजह से जो अंदर इन्फेक्शन भरा हुआ है, जो कि पस भरा हुआ है, वो सारा आपका डिस्चार्ज होकर बाहर आने लगेगा, ठीक है, जैसे वैक्स, शेड स्किन और पस आपका कान से बाहर आने लगेगा। सो इट इज कॉल्ड द ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड द ओटाइटिस, एंड एक्सटर्नल मीन्स outer ear, okay. Now we will see the symptoms of otitis externa. Itching in your ear canal, slight redness inside your ear, मतलब slight redness will be there in your inside ear, okay. Mild discomfort will be there because of infection, okay. एंड सम डिस्चार्ज ऑफ क्लियर ऑर्डरलेस फ्लूइड, मीन्स कुछ डिस्चार्ज आते हुए दिखाई देगा, चाहे तो वो ऑर्डरलेस फ्लूइड भी हो सकता है या क्लियर डिस्चार्ज हो। देन इचिंग विल बी देयर, इंक्रीजिंग पेन जिसको बोलते हैं ऑटाल्जिया, ठीक है। तो मतलब पेन विल बी देयर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड मोर एक्सटेंसिव रेडनेस इन योर ईयर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेडनेस वहाँ दिखाई देगा ईयर पे, infected ear पे। then excessive fluid drainage, then discharge of pus, then decrease or muffled, ठीक है, muffled means होता है muffled hearing, that means sound waves not able to pass easily, मतलब जो sound waves होंगे वो pass नहीं हो पाएंगे easily, there will be trouble, okay। क्यों होगा, due to infection, due to inflammation। Then feeling of fullness inside in your ears, okay, partially blockage of your ear canal by swelling, fluid and debris, मतलब partially blockage हो जाएगा ईयर, क्यों हो रहा है, क्योंकि swelling के वजह से हो सकता है वो, या फिर fluid and debris के कारण। तो आपको ऐसा लगेगा कि कान जो है भरा हुआ है, ठीक है, feeling of fullness inside in your ears। Then severe pain will be there and it will be radiate to your face, then after that neck or side of your head, मतलब ये धीरे धीरे इनका पेन फेस से होता हुआ नेक से होता हुआ साइड ऑफ योर हेड्स में भी पहुंच जाएगा। then complete blockage of your ear canal, then redness or swelling of your outer ear, then swelling in the lymph nodes in your neck, मतलब जो lymph nodes हैं neck में उधर पे swelling दिखाई देने लगेगी, and fever। Now we will see the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation, first we have to take history collection of the patient, then physical examination. Under this we have to do physical examination, for example to check fullness of the ear and redness in the ear, and imaging test like CT scan, MRI of head, ठीक है। Then otoscopic examination to check the ear, then under the lab test we have to check culture and sensitivity test। Now we will see the management. First, ear irrigation. The ear is commonly irrigated or cleanse the external auditory canal or to remove debris, impacted wax or foreign bodies। That means irrigation means हम एक तरीके से ear को clean करते हैं इसमें, ठीक है, जो एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल जो होता है उसको हम लोग क्लीन करते हैं, जिससे कि वहाँ से हम लोग डिब्रीज को और जो उसमें वैक्स चिपका हुआ है वो या फॉरेन बॉडीज़ को निकालने के लिए। सेकेंड है एंटीबायोटिक थेरापी, ओके, वहाँ पे इन्फेक्शन है तो हम लोग को एंटीबायोटिक्स थेरापी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन देन ऑल्सो वी हैव टू गिव द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। Antibiotics, cortisone drops are used for a few weeks. For the fungal infection, we have to give antifungal agents. Then Burow's solution, otherwise topical corticosteroids cream or lotion we have to use for the stop to skin irritation, मतलब to stop the skin irritation we have to give
ब्यूरोस सॉल्यूशन, अदरवाइज टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये स्पेशली जो ड्राई स्किन होता है उसमें ये सब इरिटेशन जो होते हैं उसको स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। देन ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, एसिडिक सॉल्यूशंस, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल मेडिकेशंस, रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट ऑफ कूल ड्रॉप्स प्रोवाइड कर कर रिड्यूस करना है डिस्कम्फर्ट। देन लाई ऑन योर साइड विथ योर अफेक्टेड ईयर, ओके। Analgesics we have to give to reduce the pain like acetaminophen, and then fourth one acidifying agent, that means to reduce the inflammation we have to give for example Vosol, okay. Now we will see the prevention, decrease exposure to water, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में एक्सपोज नहीं होना है, ओके। Then swimmers ear drops or alcohol drops used in the ear after water exposure, मतलब वाटर एक्सपोजर होने के बाद हमको ईयर ड्रॉप्स यूज़ करना है, स्पेशली स्विमर्स को, ठीक है, लाइक ईयर ड्रॉप्स या अल्कोहल ड्रॉप्स, बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर, ओके। जब ईयर ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसको ड्राई करना है, ड्राइंग विथ हेयर ड्रायर। देन do not insert instruments, scratch or use cotton swabs in the ears, that means ये स्पेशली है ओटाइटिस एक्सटर्ना को आप इंक्रीज ना करें, ना ये इन्फेक्शन हो, उसको बढ़ावा ना मिले, उसके लिए आपको यही सिंपल यूज़ करना है कि जितना हो सके ईयरबड्स को अवॉइड करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से वैक्स निकाल रहा हो तो वो अवॉइड करना है, ओके। ट्राई टू कीप ईयर फ्री ऑफ वैक्स, कोशिश करें आप अपने ईयर्स को वैक्स से फ्री करें। दिस मे रिक्वायर विजिट्स टू द डॉक्टर टू हैव योर ईयर्स क्लीन, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके विजिट करना पड़ेंगे जिससे कि आपके ईयर्स को क्लीन कर सकें। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन ईयर इन्फेक्शन फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, अगर आपको पहले से ही कोई ईयर इन्फेक्शन है और आप स्विमिंग भी कर रहे हो या कोई भी चीज़ें हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग से ईयर ड्रॉप्स दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। फिर मिनरल ऑयल, ईयर ड्रॉप्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम वाटर व्हेन अ ड्राई क्रस्टी स्किन कंडीशन एग्जिस्ट्स, मतलब जब आपकी स्किन जो ड्राई है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग मिनरल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, मिनरल ऑयल्स ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ड्राइनेस मिटा देगा, ठीक है। सो फॉर द ड्राई स्किन ऑल्सो वी कैन यूज द मिनरल ऑयल्स ईयर ड्रॉप्स, ओके। सो टुडे वी हैव सीन definition, and under definition we have studied inflammatory disorder of external ear canal. It is called the otitis externa and it is very painful condition, okay. After that we have seen causes and risk factors, then we have seen symptoms, diagnostic, evaluation and management, then prevention we have studied. So I hope you all understood. Thank you.